अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, गाँव की ज़िंदगी शहर से बहुत मुख्तलिफ और पुरसुकून हुआ करती थी, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता लालच और ख्वाहिशात गाँव वालों को अपनी लपेट में ले रही है। आइए देखते हैं रहीम बख्श के घर क्या हो रहा है। समझ नहीं आउण डई ठंड वाकई ज्यादा पैण डई है या तैनू वेख के ठंड पै ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਠੰਡ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲੋਂ ਝਾੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾੜਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਨੇ ਆ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਐਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਤੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾ ਐਡਾ ਚੌੜਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹਾ, ਆਹ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਤੀ ਘਟੀ ਏ। ਲੈ ਦੱਸ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲੋਂ। ਆਯੂ ਭਰਜਾਈ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਜ ਤ੍ਰਿਪਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਕਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰਨਾ? ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਵੱਢ ਛੱਡਾਂ। ਓਏ ਵੱਢ, ਐ ਖਲੋਤੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਖੱਚ ਦੀ ਖਾਚੀ ਏ ਤੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਵੇਖੇ ਆ। ਗਲੀ 'ਚ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਡੇ ਆ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਘੋਟਣਾ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਡਈ। ਉਹ ਭਾ ਇਹਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਇਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਏ, ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਸ ਪਿਆ ਏ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਏ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜੋਂ ਉਠਾ ਲੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਛੱਡ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 12 ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਓਏ ਤੇ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੋਰ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੇ ਆ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਨਾ ਮੁਰਾਦ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਬਿੱਟ ਬਿੱਟ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਧਰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਓਏ ਐਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਆ। ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜੇ ਕੋਈ 4 ਪੜ੍ਹ ਜਾਏਗੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਗੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ये तो वाकई बड़ा आम मसला है। अब तो लोग समझ गए हैं कि लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। भाई जब तक लड़की नहीं पढ़ेगी माशरा अंधेरे में डूबा रहेगा। और इसमें हर्ज क्या है कि अगर लड़की पढ़ जाए। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਉੱਥੇ। ਮੱਤ ਤੇਰੀ ਵੱਜੀ ਏ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਸਤਾਦ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਪਕਾ ਖਵਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੁੱਕਰ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। तो आप भी यहाँ टुक्कर पानी करने आते हैं? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 4 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। बहरहाल रहीम बख्श साहब, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस खौफ से बाहर निकलना पड़ेगा, लड़कियों को पढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। ਆਹੋ ਜੀ, ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖੱਜਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ जी ਆਸ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਆਪੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟਦੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ 4 ਬੰਦੇ ਰੱਖੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਭਾ ਭੇਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਖੱਜੇ ਜਾਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕੂਲ।
ਉਦੋਂ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਂਗਰਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਠਾ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਲਾਲਚ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਾਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਸੌਖਾ ਏ, ਇਹ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਏ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਐਸਪੀ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ। ਅਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀ ਆ ਬੜਾ ਡਾਡਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆ। ਅਰੇ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਫੜਵਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਕੱਲ ਹੀ ਫੜਵਾ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਅੱਬਾ, ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਲ ਗਈ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਟੋਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਨੂੰ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਲ ਫੇਰ ਦਾ ਵੀ ਡਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਢੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਵੇਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਖਾਣੀ ਰੋਟੀ, ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਢੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੇਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਈਦਾ। ਹਾਏ ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਆਹੋ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਣਨ ਡਈ ਆ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ, ਐਡਾ ਉਹ ਜਿਮ 'ਚ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਂ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਰਲ ਖਾਓ ਤੇ ਖੰਡ ਖਾਓ। ਬੜੀ ਬਣਨ ਡਈ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮੇਰੀ, ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਬਣਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਭਰਾ ਤੇ ਕੱਢਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਏ ਉਹ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਇਹ ਹੁਣੀ ਪੇਜੇ ਨੇ ਆਣਾ, ਇਹਨੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਆਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਵੋ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਉਹ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਉਣਾ ਤੂੰ 3 ਇੰਚ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਇਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਭਾ ਭੇਜੇ ਤਾਇਆ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। अम्मी बुच्ची कहाँ है? अब्बा जी तुसी ठीक हो? ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੀ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਈ ਰਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਓਏ ਓਏ, ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਸੇ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈਆ ਦੱਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਜੀ ਬੜਾ, ਦੋਵੇਂ ਢੱਗੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਨੇ 2-2 ਮੁਰੱਬੇ ਵਾਏ ਨੇ। ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਹਣ ਡਈ, ਤੂੰ ਚੰਨ ਤੇ ਵਾਹ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਨਾ ਤਾਇਆ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਕਰ, ਅੱਬਾ ਸਾਡਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਏ। ਆਹ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹਿਦ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 4 ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤੇ ਘਟੇ। ਤੂੰ ਖੱਚ ਦੀ ਖੱਚ ਹੀ ਏ। ਓਏ ਆਹੋ, ਚੱਲ ਬਾਲ ਆਏ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਲੜਾਈ ਪਵਾਈ ਏ। ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ, ਤੈਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੜੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਐ ਜਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜਦੋਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਸੱਪ ਕਿਹੜਾ ਲੜਿਆ, ਏਡਾ ਕੋ ਸੱਪ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਂਗਰਾ ਇੰਜ ਮਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸਦਹਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਓਏ ਅਸੀਂ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, 3 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੱਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੱਪ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਲੜ ਗਈ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁੱਲੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਚੂਸ ਛੱਡੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਧਾ ਦੁਹਾਣਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਣ ਡੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਸੱਪ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੱਪ ਇਹਦੇ ਦੁਹਾਣੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ। ਆਪੇ ਜੇ ਇਹ ਤਾਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਉਹ ਨਿਵਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਆ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੋਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਚ 2 ਗਾਣੇ ਵੀ ਪਾ ਲਾ।
जी वाह बड़िया रौनक लगिया ने हैं पापे जे तेरू भैन दी याद नहीं आंदी ਲਓ ਭੈਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਤੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ और सुना की हाल है तेरा अल्लाह दा शुक्र। माशाल्लाह अल्लाह नजर ना लावे हैं इस बारी ते हफ्ते बाद चक्कर ला लिया मेरे भरा ते भरजाई ने ਆਹੋ ਭਾ ਯਾਰ ਕੀ ਬੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੇਤੀ ਯਾਦ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬਸ ਯਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 50 ਲੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਕੀ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜਾ ਲੈ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਲੈ ਤੇ ਲਈਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚ ਸੌਣਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰਾ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਹੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਵੰਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਵੇ ਜਿਹਨੇ ਵੱਖਰਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਰਵੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲੀ ਖਿਲਾਰਨ ਡਈ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਮਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰ ਇਹ ਬੜਾ ਥੋੜ ਦਿਲੀ ਹੈ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਗੂੰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਅਗਲਿਆਂ ਸਮਝਣਾ ਬੋਕਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਖੂਹ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਜੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਓਏ ਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਆ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦਾ ਆਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਲਵਾਂ ਉਹ ਪਾਪੇ ਜੇ ਤੂੰ ਡਾਕਾ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ ਜਾਣੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈਨ ਭੋਲਿਆਂ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਖੌਲ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਰਿਆ ਕਰ ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਮਖੌਲ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚਣ ਡੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਆ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਲਓ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਵੰਡੋ ਆਪੇ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੱਭ ਲਓ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਲਈ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਲੇਟ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ 'ਚ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਤੇਰੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਲੱਭ ਲਓ ਚੱਲ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵਿਆਹ ਤੇਰਾ ਹੋਰੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਆ ਨੀਲਮ ਮਨੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿਰਾ ਖਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਹਾਨੀ ਆਮਰ ਉਂਝ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਂਦੀ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਭਾਪੇ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ये सुन रहे हैं आप ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਚਾਂ ਇਹ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ अस्सलाम वालेकुम जनाब ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਜ਼ਰਾ ਹਾਂਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫੀਤਾ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਪਣ ਡੇ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੀ ਪੈਲੀ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਸਿਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾਪਣ ਡਏ ਸੋ चौधरी साहब अपने पुत्र ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਕੱਲ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਦਿਓ ਮੁੱਲ ਤੇ ਪੈਣ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਜਦ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੁੱਲ ਕਾਹਦਾ ਲਵਾਉਣ ਡੇ ਆ ਤੂੰ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਰਮਨੀੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਡੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ
ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਫਾਇਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਹਾਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਓਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣ ਡਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ। ਉਹ ਭੋਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫੈਰ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ पहुंच जाना। ओ यार क्या कर रहे हो आप लोग? इतने अच्छे माहौल में आप लोगों ने बात शुरू की, इतना अच्छा माहौल था, घर के सब लोग एक साथ बैठे, क्या मरने मराने की बात शुरू कर दी है यार। चौधरी रहीम बख्श, आप भी कुछ सोचें यार। ठीक है आप अपने हिस्से की जमीन नहीं बेचना चाहते, लेकिन आपका बेटा जो शहर में जिसको जरूरत है दे दो उसका हिस्सा, बेच दो उसके हिस्से की जमीन, ताकि वो भी शहर में खुश खुर्रम जिंदगी गुजार सके। ਉਹ ਪਰ ਬਾਊ ਜੀ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣਾ ਬੜੀ बेइज्जती वाली गल है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? यानी आपने जमीन को बेच के अपने बेटे को जर्मनी भेजा, तब पियो दादे की इज्जत बेइज्जती बीच में नहीं आई। रहीम बख्श अगर अपने बेटे के लिए जमीन का एक टुकड़ा बेच देगा तो उसके लिए इज्जत बेइज्जती का मसला आ गया, ये क्या बात हुई? ਚਲੋ ਫਿਰ ਲਵਾ ਲਵੋ ਮੁੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਹਾਂ ਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤਾਏ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰ। ਓਏ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। 42 लाख तितलियां सर जी उसके पास जिंदा हैं या मुर्दा हैं? नहीं जी, जिंदा नहीं मुर्दा है, और खुश करके उसने रखी हुई है। अगर जिंदा होती ना तो रमजान साहब ने 2 किलो खरीद के भिंडियों में डाल लेनी थी। अच्छा बुजुर्ग स्टूडेंट्स, मौसम तो बहुत ज्यादा सर्द है, लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे मौसम बहार की। हम बात करेंगे रंगों की, और हम बात करेंगे कुदरत के हसीन नज़ारों की। बहुत मेहरबानी बेटा, टीचर बेटा, बहुत मेहरबानी। जितनी ज्यादा सर्दी महसूस हो रही है, बहार की गुफ्तगू होगी तो मेरा ख्याल है कि सर्दी के जो असरात हैं वो थोड़े से कम होंगे। सुनाओ जरा वो वाली बातें, हल्की हल्की हवा चल रही है, हाय हाय हाय, और हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है, वाह वाह वाह, और फूल खिले हुए हैं, हाय हाय हाय, और उनके ऊपर तितलियां मंडला रही हैं। वाह 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 वाह, यार साहब वाह, क्या नक्शा खींचा आपने, बल्कि आपने तो मेरे मुंह का निवाला, मेरा मतलब है मुंह की बात छीन ली है। ना खैर करे तो मेरा ख्याल है गोगे दे नाल रह रहा के नवाला बहुता याद आने लगा। जितना प्यारा बख्तार साहब आपने नक्शा खींचा ना बहार का, इसमें आधा किलो मूंगफली भी मंगवा ले। आज हम क्लास में बात करने लगे हैं तितलियों के हवाले से। बाजी जी जी, और आप जानते हैं कि कुदरत की हसीन तरीन तख्लीकात में से तितली एक खूबसूरत तख्लीक है। क्या कहने क्या कहा, आई एम सॉरी बेटे, ये तितलियों से मुझे याद आया जी, ये हमारी नई स्टूडेंट हैं रूही साहबा, ये हमारे मोहल्ले में रहती थी, तो इन्होंने कहा कि आप मुझे भी साथ ले जाया करें। अच्छा, सुना है वहाँ बड़ी अच्छी क्लास होती है। क्या बात है बख्तियार साहब, मैं उनका तारुफ लेने ही वाला था। बहुत शुक्रिया कि आपने रूही साहिबा का तारुफ करवा दिया। जी हाँ, बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह हम बात करेंगे तितलियों के हवाले से। आपने जो बहार का नक्शा खींचा कि हर सरसब्ज बागात, खिले हुए फूल, और उस पे हर फूल पे रंग बिरंगी तितलियां। जी हाँ, और सिर्फ तितलियां नहीं होती जी, जहाज भी होते हैं, जहाज भी। अगर इन बच्चियों को नहीं पता कि पौधों पे फिरने वाला जहाज क्या होता है, तो फिर आप नुसरत साहब को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह के पतले पतले जहाज होते थे, उनके पर होते थे ट्रांसपेरेंट जी, और उनकी पूंछ के साथ हम धागा बांध लेते थे और उनको उड़ाया करते थे। कई बच्चे थे हेलीकॉप्टर भी कहते सी। टीचर बेटे, मैं गंदे बच्चों में नहीं खेलता था। अच्छा, मैं तितलियों के साथ खेलता था। वाह। तो यकीन करें, जब भी मेरे ज़हन में तितलियां आती हैं ना, तो मेरे ज़हन में वही गाना आता है, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल नी, मैं उड्डी उड्डी जावा
हवा दे नाल। वाह 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 माना साहब, आपने क्लास का माहौल बना दिया है। यानी बात तितली की हो रही है, गाना भी आपने मुनासबत से गा दिया। तो चलें कुछ दिलचस्प हकायक के तितलियों के हवाले से जिनको जान के आज आप सब लोग बहुत हैरान होंगे और आपकी मालूमात में भी बहुत इजाफा होगा। जी मेहरबानी आप शुरू करें, हम नोट करेंगे। अच्छा जी, आप लोगों ने तितलियों की चंद अक़साम ही देखी होंगी अपनी जिंदगी में, लेकिन साइंसदानों ने पूरी दुनिया में तितलियों की 28,000 अक़साम दरियाफ्त की हैं। बल्ले बल्ले 28,000 जो इकसाम है तितलियों की वो दुनिया में मौजूद है। हाय 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 हाय। और दुनिया के हर खित्ते में ये तितलियां मौजूद है, हर खित्ते में, सुभान अल्लाह। मां सवाए सिर्फ एक जगह, और वो है बर्रे आजम अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका में तितलियां ना होने की वजह वहां का सरतरीन दर्जा हरारत है। अच्छा। क्योंकि तितलियों का जो अपना बॉडी टेम्परेचर होता है वो 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और उनको ये टेम्परेचर चाहिए। अच्छा जी। और अगर किसी खित्ते का दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो उड़ नहीं सकते, या फिर इनको उड़ने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। नुसरत साहब भी कह रहे थे कि मैं तो अमूमन टेम्परेचर लो हो जाए तो घर से बाहर नहीं निकलता। आप सब लोगों को भी आजकल कम दर्जा हरारत है, घर से कम कम निकलना चाहिए, एहतियात कीजिए। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ क्लास के लिए ही आया हूँ, वरना जो आपकी भाभी है ना, बल्कि जो आपकी बहू है, वो मुझे बिल्कुल नहीं निकलने दे रही। बहू यानी हमारी माँ जी। यार ये ना कहे, वो फिर शो देख के तो नाराज होती है। अच्छा। उसको तो एक दुकानदार ने कहा था माँ जी, उसने उसी की चलनी पकड़ के उसे बहुत मारा था। नहीं, भाभी की वैसे उम्र नहीं है इतनी। हाँ। बख्तियार साहब से सिर्फ 10 साल बड़ी हैं। चले उनको हम छोड़ते, तितलियों की बात करते हैं। एक और दिलचस्प हकीकत तितलियों के हवाले से कि तितलियों की 6 टांगे होती हैं। अच्छा जी 6 टांगे होती हैं, और किसी भी चीज का जायका चखने के लिए तितली अपनी टांगों का इस्तेमाल करती है। वाह वाह। अच्छा, यानी उसकी जुबान का काम उनकी टांगें करती हैं। टांगे करती हैं, और वो भी पिछली टांगे इसका काम देती हैं, जिसके जरिए वो किसी भी चीज को चख सकती हैं। वाह जी। वाह साहब, 6 ਲੱਤਾਂ ਜੇ ਤਿਤਲੀ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। बड़ी गल है। यानी तितली की जुबान जो है वो उसकी दोनों पिछली टांगे होती हैं। हाँ जी। ये तो आपस में लड़ती हुई कहती होंगी, मेरे साथ तमीज से बात करो वरना मैं तुम्हारी पिछली टांग खींच लूंगी। इस तरह तुम फर पिछली टांगे चलाती हो। अच्छा, एक और दिलचस्प बात कि जब तितलियां अंडे देती हैं तो अंडे देने से पहले वो किसी भी जो पौधे पे उसके पत्तों पे टांगे मारती हैं। अच्छा। टांग मारने की सूरत में वो पत्ता एक मखसूस किस्म का केमिकल उसमें से खारिज करता है। तितलियां उस केमिकल को चखती हैं, और अगर वो केमिकल उनको मवाफिक लगता है तो फिर वो उस पे अंडे देती हैं, ताकि जब उसके बच्चे निकलें या लार्वा जो तितली की शक्ल इख्तियार करे वो उसको शौक से खा सके। वाह जी वाह। ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਪੁੱਤ ਕਿ ਤਿਤਲੀ ਵੱਧ ਜ਼ਾਇਕਾ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਡੇ नहीं देंदी। जी, जिसका जायका उसे पसंद नहीं वहां वो अंडे नहीं देती। सर जी, ये तितली के अंडों का आमलेट भी बनाया जा सकता है। लो। यार इतने इतने से तो उसके अंडे होते हैं, तुमने उसका आमलेट बना के आंख में डालना है। ऐसे रमजान साहब खुदा का खौफ करे, तितली के अंडों को तो छोड़ दें यार आप। अच्छा जी, रमजान साहब ने चूंकि खुराक की बात छेड़ी है, इसलिए मैं आपको यह बताऊं कि जो तितलियां हैं वो ठोस चीज नहीं खा सकती हैं, यानी कि लिक्विड डाइट के ऊपर जिंदा रहती हैं। जी। इसीलिए ये मुख्तलिफ फूलों के रस चूसती है, जिसे हम नेक्टर कहते हैं। अच्छा। और ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि सिर्फ नेक्टर ही इनकी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं होता, जिसके वजह से ये जो पानी का जोहड़ होता है उसमें से भी अपनी मादनियात लेती हैं, जिनको मड पडल्स कहा जाता है, और तितलियों के इस अमल को पडलिंग कहते हैं। अच्छा। हाँ, मुझे याद आया, जब हम छोटी छोटी थी ना बचपन में, तो हमारे गांव में एक तालाब था, उसके पास बहुत सारी तितलियां होती थी। मुझे तो आप भी तितली लग रही हैं।
इनू कहिंदे आ मकड़े को तितली के ख्वाब। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जो तितली के पर होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मगर उनके अंदर तो बड़े बड़े रंग भरे हुए होते हैं। मेरी बात तो सुनिए, कुदरत ने इस खूबसूरती के साथ उसको बनाया है, ऐसे रंग भरे होते हैं उसके अंदर कि जब उस पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा, हाँ, ये रोशनी इन पर पड़ती है तो खूबसूरत रंग उजागर होते हैं और हम बेसाख्ता कह उठते हैं कि वाह क्या खूबसूरत तितली है। जिस तरह अभी अमानत साहब बेसाख्ता कह उठे हैं कि ये तितली है। बस करो, क्यों मुझे क्लास में से निकलवाना तुमने? अच्छा जी, इतनी खूबसूरत तख्लीक यानी इतना खूबसूरत इंसेक्ट, इसके उमूमी तौर पे जो जिंदगी है वो बहुत मुख्तसर सी है, यानी सिर्फ 2 हफ्तों से 4 हफ्तों तक उमूमी तौर पर। अच्छा। वैसे तो एक किस्म तितली की ऐसी भी है, मोनार्क तितली जिसे कहा जाता है, वो 9 माह तक भी जिंदा रहती है। ये जो 2 से 4 हफ्तों की जो जिंदगी उमूमी तौर पे ऊपर ज्यादातर तितलियों को मिलती है, हाँ जी। इसमें इनके 2 ही काम होते हैं, या तो खाना या फिर अंडे देना। नहीं तो और क्या, फैशन शो में कैटवॉक भी किया करे। इतना नन्हा मुन्ना परिंदा है, वो तो अल्लाह पाक ने कायनात की खूबसूरती के लिए पैदा किया। हाँ जी, बिल्कुल जी। अच्छा, तितलियां सिर्फ 10 से 12 फुट तक देख सकती हैं, इससे आगे इनको धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है। वाह वाह वाह, सिर्फ 10-12 फुट तक देख सकती है जी। मुझे भी रूही के आगे कुछ नजर नहीं आता। जिद्दन तेरे च स्कूटर वज जाना तेन सारा कुछ नजर आने लग। अच्छा, इसके बावजूद इनके अंदर एक सलाहियत ऐसी मौजूद है जो इंसान के अंदर ये सलाहियत नहीं है। वो ये कि ये अल्ट्रा वायलेट लाइट देख सकती हैं जो इंसान नहीं देख सकता। अच्छा, वाह। इसके अलावा इनके परों पे यानी तितलियों के परों पे अल्ट्रा वायलेट मार्किंग होती है, निशानात होते हैं, जिससे ये एक दूसरे को पहचानने में भी मदद लेती हैं। यानी इनके शनाख्ती कार्ड पे शनाख्ती अलामत अल्ट्रा वायलेट मार्क होता है। यार, शनाख्ती कार्ड कहाँ से आ गया तितलियों का? वो आप कह रहे थे ना कि इन मार्क की वजह से वो एक दूसरे को शनाख्त करती है। हाँ, तो एक दूसरे को शनाख्त करती है ना, शनाख्ती कार्ड थोड़ी बनवाने जाती हैं। अच्छा रूही साहबा, अभी जब क्लास खत्म होती है ना तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा। एक्सक्यूज मी अमानत साहब, क्लास का डेकोरम खराब मत करें। सॉरी, वो मेरा भतीजा बेल्जियम से लेके आया था। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि तितली सिर्फ 10 से 12 फुट तक देख सकती है, लेकिन इसकी आंख की बनावट बड़ी हैरान कुन है। यानी इसकी एक आंख में 17,000 छोटी 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 आंखें होती हैं। अच्छा। और इसी वजह से इसकी आंख को कंपाउंड आई कहा जाता है। अपनी इस आंख की वजह से ये 9 मुख्तलिफ इक़साम के रंग देख सकती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट देख सकती है, और साथ में जिन जिन फूलों से रस चूसना होता है उन फूलों के रंग भी ये बहुत आसानी के साथ देख लेती है। वाह सर जी, 17,000 आंखें एक आंख के अंदर है। क्या ये आंखें डोनेट भी करती हैं? क्या बात कर रहे हैं नुसरत साहब, वो तितली की आंख है, आपके अंदर वो नहीं लग सकती। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਕੀ करना नुसरत साहब? ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1700 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि कुछ लोगों को सिक्के जमा करने का शौक होता है, कुछ लोगों को डाक टिकट जमा करने का शौक होता है, कुछ लोगों को ऑटोग्राफ और कुछ लोगों को खतूत जमा करने का शौक होता है। लेकिन कीनिया में एक 72 साला शख्स है, स्टीव कॉलिंस, उसको तितलियां जमा करने का शौक है। हाँ हाँ, उसके पास 42 लाख तितलियों का खजाना मौजूद है। जी जी, और उनमें सबसे महंगी तितली की कीमत $8,000 है। 42 लाख तितलियां सर जी उसके पास जिंदा हैं या मुर्दा हैं? नहीं जी, जिंदा नहीं, मुर्दा हैं।
और खुश करके उसने रखी हुई हैं। अच्छा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम किताबों में फूल रखते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उसने मुख्तलिफ तितलियों को बोर्ड्स के ऊपर चिस्पा किया हुआ है और उसकी ये ख्वाहिश है कि वो अपने इस खजाने को किसी फर्द या रिसर्च इंस्टीट्यूट को दे, और वो ये समझता है कि जब वो इस दुनिया में ना रहे तो इसका ये खजाना किसी महफूज हाथों में हो। हो अगर जिंदा होती ना तो रमजान साहब ने 2 किलो खरीद के भिंडियों में डाल लेनी थी। रूही, जब क्लास क्लोज होगी ना तो मेरे साथ एक वीडियो बनानी है। एक्सक्यूज मी, डिसिप्लिन। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। सर्दी का मौसम हाँ। और वो कह रहा है जी कि मैंने तो ये दरवाजे और खिड़कियां तब्दील करवानी है, इसलिए मैं ये उतार रहा हूँ, आप मकान खाली ना करें। उन्हें सारे यहाँ खिड़कियां दरवाजे उतार के खोती रेड़ी ते लद्दे ते लैके निकल गया। अच्छा जी, जैसे हमारे हमारे मुआशरे में, हमारी कौम के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जी और बहुत से अलमिया हैं जी, उसी तरह एक ये भी है कि हम दूसरे की मजबूरी से फायदा उठाते हैं। जी हाँ जी। जिसका प्रैक्टिकली जो हमें नजर आता है मंजर, वो खास तौर पे रमजान के महीने में आता है, हाँ जी सर। क्योंकि रमजान में लोग खजूर या फ्रूट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इनकी कीमतें आसमान को छू रही होती हैं। दुरुस्त बात है। बड़ी ईद के ऊपर बकरे जो हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, हाँ जी, बहुत। दुगनी चुगनी हो जाती हैं। बिल्कुल, ज्यादा गर्मी हो तो बर्फ महंगी हो जाती। हाँ, सर्दियों में गर्म कपड़े महंगे हो जाते हैं। हाँ, सर्दियों में लकड़ी कोयला तक महंगा हो जाता है। जी यार हर मौसम में उसकी जरूरत की चीज महंगी हो जाती है। हाँ, मतलब हम मजबूरी से फायदा उठाते हैं। सही बात है, बिल्कुल। एक डिमांड है या जरूरत है, जी जी। जब दुकानदार को पता चल जाता है कि ये तो अब जरूरत है, तो उसका भाव ताव जो है वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है और लोग परेशान हो रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है। आप देखते हैं ना कि मोहल्ले में अगर कोई स्कूल एक ही है जी जी। तो वो अपनी मर्जी से फीसें ले रहा है, अपनी मर्जी से छुट्टियां कर रहा है, अपनी मर्जी से वो यूनिफॉर्म जो है वो बेच रहा है, स्कूल की चीजें महंगी कर देते हैं। जी बिल्कुल। ज्यादा स्कूल हैं तो फिर फीसों के रेट नीचे आ जाते जी हैं। हाँ। हाँ जी हाँ जी, मतलब कोई क्वालिटी बेस्ड नहीं होता, बिल्कुल। बस सिर्फ मजबूरी से फायदा उठाना होता है। जबकि आप दूसरे मुल्कों में देखें कि जो चीज लोगों की जरूरत होती है जी वो सस्ती हो जाती है, हाँ जी। सस्ती कर देते हैं वो बिल्कुल, कि भाई ये लोगों को जरूरत है, ये बड़ी अहम चीज है, इसके बगैर जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, तो वो उसका रेट इतना नीचे ले आते हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी उसे हासिल कर सके, उसे खरीद सके। हाँ, बिल्कुल। मगर बाहर के मुल्कों में भी बड़ा बड़ा बंदा पड़ा हुआ है जो फायदा उठाते हैं। नेगेटिव जहन जो है वो कहीं भी हो सकता है ना जी बिल्कुल। मगर वहां पे ऐसा बहुत कम होता है, जी हाँ। बहुत कम होता है। बाहर के ममालिक में, खास तौर पे यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, बहुत कम ऐसा होता है। हाँ जी। यार वो तो इतना ख्याल रखते हैं एक दूसरे का कि अभी हाल ही में जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ एक स्टोर में जाना हुआ तो वहाँ कुछ चीज़ों की कीमतों के बारे में मुझे बताया गया कि ये आम चीज़ों की निस्बत इसकी कीमत कम है। जब मैंने पूछा कि भाई इसकी वजह क्या है तो उन्होंने कहा कि ये माँ और बच्चे की ग़िज़ाइयत पूरी करने वाली चीज़ें, इसलिए इसकी कीमत को आम चीज़ों के मुकाबले में निस्बतन बहुत कम रखा गया। हाँ, मगर जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे उधर भी हैं, बहुत कम है, बहुत कम है। फिर वो लोग जो हैं वो उन लोगों को टैकल करने के लिए, रोकने के लिए कवानीन बड़े अच्छे बनाते हैं। जी हाँ जी। आपको ये सुन के हैरत होगी कि जिन ममालिक में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, हाँ जी। खास तौर पे यूरोप के बहुत से ममालिक, बल्कि तकरीबन सारे मुल्क जो हैं यूरोप के, वहां पे सर्दियों के दिनों में, मौसम सरमा में, जो किरायादार है ना जी, उससे मालिक मकान खाली नहीं करवा सकता। अच्छा जी। जी हाँ, बेशक वो किराया ना भी दे रहा हो, वो बहाने शहाने लगा रहा हो, जो मर्जी कर रहा हो, मालिक मकान को तंग कर रहा हो, मगर सर्दियों के मौसम में मालिक मकान जो है वो अपना मकान खाली नहीं करवा सकता। एक कानून है। कैसी खूबसूरत बात, कितना मुझे मजा आया ये पढ़ के कि यार क्या अच्छी बात है, कितना ख्याल करते हैं इंसान का। वो ये कौन से मुल्क में बताया दीदी? यूरोप में, यूरोप बेशुमार मुल्कों में ऐसा है, तकरीबन तमाम मुल्कों में ऐसा है कि सर्दियों में नहीं, आप भाई
उसको किराएदार को तंग कर सकते हैं या निकाल सकते जी। हैं। उसकी अगर कोई मजबूरी भी है, वो किराया लेट सवेर कर रहा है, नो प्रॉब्लम, सही। खाली नहीं आप मकान करवा सकते उससे। और सर्दी उधर पड़ती भी बहुत है ना, बर्फ बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती हाँ है। जी। अच्छा, एक खबर मैंने ऐसी पढ़ी इसी हवाले से कि मुझे बहुत हैरानगी भी हुई और मजा भी आया, बड़ी दिलचस्प खबर है। जी जी। फ्रांस में भी चूंकि किराएदार को सर्दियों के मौसम में घर से निकालना गैर कानूनी है, इसलिए वहां एक मालिक मकान ने क्या हरबा इस्तेमाल किया। वो किराए से कहीं उसे तंग तुंग कर रहा था। उसने क्या किया, उसने घर की खिड़कियां और दरवाजे ये कह के उतरवा लिए कि मैंने इन्हें तब्दील करवाना है। अब सर्दी का मौसम और वो कह रहा है जी कि मैंने तो ये दरवाजे और खिड़कियां तब्दील करवानी है, इसलिए मैं ये उतार रहा हूं, आप मकान खाली ना करें। उन्हें सारे यहाँ खिड़कियां दरवाजे उतार के खोती रेड़ी ते लद्दे ते लैके निकल गया। उसके बाद वो आया ही नहीं। इसे कहते हैं तू शेर है तो मैं फिर सवा से। किराएदार ने सोचा होगा कानून तो है ही ये कि सर्दियों में किराए से बेशक जितना मर्जी तंग कर लो, उसने किराया देने की बजाय ना जी उन्हीं पैसों का को सूप पी लिया होगा, तो फिंगर फिश खा लिए होंगे, बारबेक्यू कर लिया होगा। लेकिन मालिक मकान ने कहा कि सोनिया मैं भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेड़ा हुआ। उसने सारे सर्दी रोकने वाले जो थे ना जी दरवाजे खिड़कियां वो उतारे, खिड़कियां उतारी और लेके निकल गया। एक आध उसकी कोई खिड़की टूटी हुई थी, तो उसने उसको बता के ना जी यह खिड़की देखो खराब हो गई है और ये सारी ठीक नहीं रही, इसलिए मैं ये उतार रहा हूँ। मुझे वो पिंड की लारी याद आ गई, जो सर्दियों में किसी लारी में बैठ के पिंड जाते थे ना, उसके शीशे नहीं थे होते, अंदर सारी सवारियां बेचारियां इंजन कर रही हैं। उसका मकान उसने पिंड की लारी बना दिया। ऊपर इतनी ठंड, सर्दी तो ऐसे उसके घर में घुस रही है जैसे फौजें नहीं किले की दीवार तोड़ के अंदर आती। तो फिर अजीजी किराएदार ने घर खाली कर दिया? नहीं जी किथों, वो भी क्यों को गोगेर का सी ना। उसने दरवाजों खिड़कियों के ऊपर चादरें लटका ली हैं और अभी तो अंदर बैठा हुआ है। होली होली ओदे बेचारे दे ठंड नाल दंद वज के जो तो सारे लथ जाएंगे। फिर वो या तो कहेगा कि आ जा यार आके किराया ले जा, कला ना आवी, सारियां दरवाजे खिड़कियां लैके आवी। अब कब तक वो बेचारा अपने दांतों का म्यूजिक बजाएगा। मजा तो ये है कि अब अगर किरायादार किराया दे के तो खिड़कियां दरवाजे लगाने का कहे, तो मालिक मकान ये कह के किराया बढ़ाने का मुतालबा कर दे कि अब तो नए दरवाजे खिड़कियां लग गए हैं, अब पुराने वाला किराया नहीं चलेगा। ओके, तुम दुआ करो कि ये सेगमेंट तुम्हारा मालिक मकान ना देख ले, वरना कल तुम्हारी भी खिड़कियां दरवाजे उतर जाने। नहीं, इसकी खिड़कियां दरवाजे नहीं उतारता मालिक मकान। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि एडी मोटी चमड़ी नूं तो ठंड ने कुछ कहना ही नहीं। गोगे से तो मालिक मकान ने ना इससे किराया मांगना छोड़ दिया। अच्छा जी। हाँ, ये तरला ही ऐसा करता है कि वो पल्ले से 500 रुपए इसको दे के जाता है। अजीजी, मुझे तो लगता है कि फ्रांस का ये मालिक मकान यकीनन किसी पाकिस्तानी का शागिर्द है या फिर ये पाकिस्तान का टूर लगा चुका है, वरना इतनी टेक्निकल सोच किसी बाहर के बंदे को नहीं आ सकती। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि यहाँ भी किराएदार को निकालने के लिए ऐसे ही रास्ते इख्तियार किए जाते हैं। मसलन कह देते हैं जी ऐसी सफेदी करानी है, या कह देते जी बड़े बेटे की शादी करनी है जो खुद यहाँ शिफ्ट होगा, या हमने गिरा के दोबारा बनाना है, या फिर हमने बयाना पकड़ लिया आगे बेच दिया है हमने, इसलिए फौरी इसको खाली कर दें, हमने उनको कब्जा देना है, मिला करो फटाफट। मगर जो आगे से यहाँ किराएदार हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, वो कोई सऊदी अरब से तो नहीं ना आए हुए, वो फिर ऐसा ऐसा बदला लेते हैं कि आए हाय हाय, और मकान खाली करते सारे महल्ले च मशहूर कर देंगे ने इस मकान च जिन्न सन असीं तां खाली कर। आ मेरे वड्डे मुंडे नूं जिन्न ने राती वो चपेड़ा मारियां ने, हालां ओदी बेगम ने चपेड़ा मारियां हुंदियां, वो बेचारा टाइम सिर बेगम दा नां जिन्न रख लैंदा। इसलिए अगर कोई और यहाँ बेचारा आए मकान किराए पे लेने या खरीदने के लिए तो उसको बता देना, असी तो फंस कैसा हो भी नाना को फंस जावे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
मेरा वेरी गुड लुकिंग। हालांकि इसने गौरी ने मुझे कान में कहा भी है कि मीरब का कच्चे अमरूद जैसा मुंह। अच्छा जी, आज हमने एक बार फिर अपने नाजरीन के लिए सोशल मीडिया से कुछ दिलचस्प जो मीम्स हैं उनका इंतखाब किया है, तो देखते हैं जरा इन मीम्स को। लाएं जी, दिखाएं। ये देखें जनाब। कहते हैं मर्द ज्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन इसकी वजह भी औरतें हैं। पूछती ही क्यों हैं मैं कैसी लग रही हूं। मैं तो इस मीम पे कोई हंसी नहीं हंसूंगा। क्यों जी? नहीं भाई घर भी जाने शो मुका के। इंतहाई फजूल मीम बनी हुई है। क्यों हंस रहे हो? हंस रहा इसलिए कि कह दो कि अच्छी लग रही हो तो ठीक है, नहीं लग रही तो फिर लड़ाई है। यार लागी अच्छी रही होती है, लागी अच्छी रही लागी अच्छी रही होती है। बिल्कुल। हम क्यों ये सोचें कि नहीं अच्छी लग रही होती? ना अच्छी कह के तो फिर नवा सूट दुआना। मैं तो मीरब जब भी आती है मैं कहता हूँ कि मीरब वेरी गुड लुकिंग। हालांकि इसने गौरी ने मुझे कान में कहा भी है कि मीरब का कच्चे अमरूद जैसा मुंह। नहीं बिल्कुल नहीं, क्यूट बच्ची है। तो भाई अगली मीम देखो जी। ये देखें जी। बाबा जी कहते हैं कि कुत्ता ताल्लुकी से कता ताल्लुकी बेहतर है। बहुत अच्छे। ये अपनी कोई लेकर आए जड़ा सी ना जी एक मुहावरा जी आके क्यों इस कुत्ते कम च पई है। उन्होंने उसका नाम कुत्ता ताल्लुकी रहा। बात तो वैसे उनकी ठीक ही है। बाबा जी भी ठीक ने, ते जेड़ा भाई है ना जिदे बाबा जी ने, ये दोवें वैसे आपस च रले। देखो ना जरा कुत्ता ताल्लुकी ते कता ताल्लुकी कैसा मिक्स किया उसने। इन दोनों के भी आपस में कोई ताल्लुक ही है, या कुत्ता ताल्लुकी है या बिल्ली ताल्लुकी है। मुझे तो लग रहा है बाबा जी भी दुनिया के सताए हुए ही है। अच्छा वैसे हर बाबा दुनिया का सताया आया। जवानी में तो नहीं ना पता चलता, मजे नाल जिंदगी गुजार रहा होंदा है। जब फिर इंसान बुढ़ापे में दाखिल होता है ना, तो फिर वो बेचारा दुनिया का सताया हुआ हो जाता है। अच्छा जी, ये देखें एक और मीम। मत ढूंढो मुझे दुनिया की तन्हाई में, सर्दी बहुत है मैं हूं अपनी रजाई में। यार वैसे वाकई इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि मेरा कई बारी दिल कीता रजाई चो मुंह कट के कवां की तकलीफ है तेनू। अच्छा जीजी पहले कह रहे थे कि ठंड आ नहीं रही, अब आई है तो हर बंदा कह रहा है बहुत ठंड है। वाकई बहुत ही ठंड है और अब ज्यादा महसूस हो रहा है। पता नहीं बुजुर्ग हो गए हैं तो यार ठंडे मौसम में ठंड नहीं होगी तो फिर क्या गर्मी पड़ेगी? आहो भाई जी ये आदा है ये आदा है ये कह रहे हैं। ये नहीं असी कह रहे कि सर्दियों के मौसम में 40 डिग्री हो जाए। अजीजी मैं तो सुबह रजाई ऐसे फेंकता हूँ जैसे डॉक्टर से टीका नहीं लगवाते। सर्दी में तो कोई ऊपर से रजाई खींचे तो ऐसे लगता है कि उसने खाल खींच ली है। मुजफ्फर को तो इसलिए ज्यादा महसूस होता है कि देखो है ही सिर्फ खाल। और खाल भी इंज छिली जाती जिवें गन्ना नहीं छिली दा। सर आप लोगों को क्या ही सर्दी लगनी है, हमसे पूछो जिन्हें साथ फैशन भी करना पड़ता है। तो हम फैशन नहीं करते, ये कोट मैंने पहना ये फैशन ही है और मैं कोई फायर ब्रिगेड में नहीं लगा हुआ। गौरी तो गर्मियां हो सर्दियां हो फैशन नहीं छोड़ता। अच्छा जी एक और मीम है, ये देखें, ये ले जी। आज गलती से पंखे का बटन दब गया, सब मुझे ऐसे देखने लगे जैसे घर में डाकू घुस आया है। वाह वाह वाह। देखो जरा मीम ज्यादा आजकल सर्दियों के हवाले से ही हैं। सही बात है। और वाकई अमान से आजकल तो को बटन दबा दे पंखे का तो जहर लगता है, जहर। अजीजी मेरे पोते ने जो मुझे बहुत ही प्यारा है, वैसे खेलते हुए उसने पंखे का बटन दबा दिया। हाय हाय। ओ मैंने उठ के उसके एक लगाई। शुक्र करो पोते ने दबा दिया, ओदी अम्मा ने नहीं दबाता। नहीं तो उथे ओ सौरे ते नूह दी लड़ाई होनी। वैसे सर्दी वाकई बहुत है। ये एक और मीम देखे, ये ले जी।
अगर मर्द इसका 10% भी होते जितना के बीवियां उन्हें बेवकूफ समझती हैं तो दुनिया का निजाम कब का ठप हो चुका होता। वाह भाई ये जिन्हें सारियां मीमा साढ़े ते लिख अजीजी मेरी बीवी हर काम में मुझे कहती है तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने कहा अगर मुझे कुछ नहीं पता तो मैं फिर घर कैसे आ जाता हूँ शाम को। एहतियात किया करो, ये ना हो कि बहन हमारी आगे से कह दे मैनू पता तुहानू तुहाडा शागिर्द छड्ड जांदा है। मेरी बेगम भी अजीजी हर वेले ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ। मैंने कहा मैनू वाकई कुछ नहीं जे पता, सब कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ही पता है। ये मकान का नक्शा भी तुसी बनाया है। भाभी ने आगे से कहा नहीं मैं ही बनाया सी नक्शा, इधर वाला कमरा इधर बनाता ही ते इधर वाला उधर बनाता सी। मैं फिर आके उधर वाला इधर कीता ते इधर वाला उधर कीता। वाह वाह वाह। शुक्र है भाई मेरी बेगम मुझे कभी नहीं कहती कि थानू नहीं कुछ भी पता। अच्छा क्योंकि उन्हें पता है सारे काम ते मैं इहदे कोलों कराने ने, मैं क्यों कवां। वाकई अक्सर खवातीन की बात सुन के यही लगता है कि सारे मर्द बेवकूफ हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। हाँ जी अंडा ना सही तले ना बेचारा मर्द। हाँ तो उन्हें कह देने ये आपको तो अंडा तक बनाना नहीं आता। दिल करे उस बेचारे ने एटम बम बनाया होवे। और साथ में ये भी कहती हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह खैर करे यार, फरीद सी आना ते साडे नालों भी दुखी है। अजीजी भाई मेरी बेगम ने तो मुझे एक दफा ही कहा है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने कहा क्यों नहीं पता, मुझे पता आज हफ्ता है। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। वाह 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 वाह। इसका मतलब है उसने ये मान लिया कि तुम कैलेंडर के मैकेनिक हो। फरीद साहब मेरी बेगम कभी नहीं मेरे आगे बोली। बिल्कुल वो गूंगी है। अच्छा इस हवाले से एक लतीफा है, वो हद है इसकी। अच्छा वो एक बंदा बेचारा चोरी करता हुआ पकड़ा गया ना, तो पुलिस पकड़ के थाने ले गई। तो बेगम उसके पीछे गई, उसने जाके कहा कि की कर दियो पे थानेदार साहब, इन बेचारे ने फाड़ लिया, इन्हें तो कुछ भी नहीं पता। उन्हें कहा कुछ क्यों नहीं पता, चोरी करके आया है। कहती जी चोरी कर ली तो इन्हें कुछ पता होंदा तो फड़िया जांदा। वाह वाह वाह। अजीजी एक दफा फिर मेरी बेगम ने कहा तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने कहा तुम्हें मैं जेवर लेके दूं। कह रही तुम्हें तो सारा पता है। वैसे सर माफ कीजिएगा, अगर औरत ऐसा कहती है ना तो वो मर्द की हमदर्दी में कहती है। हाँ जी मर्द की हमदर्दी में उसे बेवकूफ बना देती है। बहुत अच्छी हमदर्दी है जी, बहुत अच्छी हमदर्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस हमदर्दी। ताहिर लाहौती इस हमदर्दी से चुप अच्छी। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।